ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کی صنعتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی رفتار اور حجم میں اضافہ کریں۔ نیشنل کانفرنس کی لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ منعقد۔ میٹنگ میں پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ کو متفقہ طور پر لیجسلیچر پارٹی کا لیڈر چنا گیا۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے سلسلے میں کئی پروگراموں کا انعقاد، اور سری نگر سے چیف سیکرٹری نے کیا آج سائیکل ایکسپیڈیشن روانہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کی صنعتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی رفتار اور حجم میں اضافہ کریں۔ آج نئی دلی میں پی ایچ ڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 119ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمپنیوں کو بڑے خواب دیکھنے ہیں اور انہیں عالمی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے چیمبرز اور انڈسٹریز کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے 2000 سے زیادہ فرسودہ نوآبادیاتی قوانین کو ختم کر دیا ہے، کمپنیوں کے ایکٹ میں اصلاح کی ہے اور 39,000 سے زیادہ ضابطوں کی تعمیل کو آسان بنایا ہے۔ اگلے 25 برس میں ہر ایک شعبے میں بھارت کو ایک رہنما ملک بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس ویژن، تجربہ اور عزم ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ 2024 بھارت کے صنعتی شعبے کے لیے نہایت ہی اہم اور فیصلہ کن سال ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے نو منتخبہ اسمبلی ممبران یعنی لیجسلیچر پارٹی کی آج سری نگر میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کی۔ اس میٹنگ میں پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ، چیف سیکرٹری علی محمد ساگر سمیت پارٹی کے نو منتخبہ ممبران اسمبلی نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران تمام شرکاء نے متفقہ طور پر پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ کو لیجسلیچر پارٹی کا لیڈر منتخب کیا۔ اس موقع پر عمر عبداللہ نے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی جموں کشمیر کے عوام کی خدمت کرتی رہے گی۔ اس دوران 4 آزاد ممبران نے نیشنل کانفرنس کو اپنی حمایت دینے کا اعلان کیا۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے سلسلے میں آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام کا اہتمام ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر نے ہیومن رائٹس اینڈ اینٹی کرپشن فورم نئی دلی کے اشتراک سے کیا تھا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی سیکرٹری نصرت علی حقاق مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہی۔ بیداری پروگرام میں مدثر احمد نائکو نے بھی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کئی مشورے پیش کیے۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے سلسلے میں ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز ایمپاورمنٹ کی طرف سے لال چوک سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ایسٹ مبشر بخاری مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ اس پروگرام کے دوران دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے طور طریقوں پر ماہرین نے روشنی ڈالی۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کی طرف سے بھی آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے موقع پر ایک سیمینار کم بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران جی ایم سی اننت ناگ کے ماہر نفسیات نے دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے طور طریقوں کو اجاگر کیا۔ سری نگر سے آج سائیکل ایکسپیڈیشن روانہ ہوا۔ اس ایکسپیڈیشن کو چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے پولو ویو سری نگر سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ سائیکل ایکسپیڈیشن کنیا کماری میں اختتام پذیر ہوگا۔ انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کی طرف سے اسپانسر کیے گئے ریس اکراس انڈیا کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔ اس سائیکل ریس میں قومی اور بین الاقوامی سطح کی 22 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے اس موقع پر جموں کشمیر اسپورٹس کونسل اور انڈین آئل کارپوریشن کے رول کی سراہنا کی۔ محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے آج سیڈ پروسیسنگ پلانٹ ملنگ پورہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے پلانٹ کے مختلف سیکشنوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وہاں موجود زرعی ماہرین سے بات کر کے بہتر اور معیاری بیجوں کی حصولیابی کے طور طریقوں پر بات کی۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی نے بابا پیام الدین رشی رحمۃ اللہ درگاہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں مختلف تعمیراتی کاموں کا افتتاح کیا۔ درخشان درابی نے آرنامنٹل ڈیوری انٹرنس کا بھی افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ دیگر افسران بھی تھے۔
अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में शहीद हुए टेरिटोरियल आर्मी के जवान हिलाल अहमद भट्ट की कल शाम देर गए रेथ लेइंग सेरेमनी हुई और आला फौजी अफसरान की मौजूदगी में उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ नम आंखों से नौगाम शांगस में सुपर्द खाक किया गया। इस मौके पर फौजी दस्ते ने उन्हें गन सैल्यूट भी पेश किया। हिलाल अहमद भट्ट को मिली टंटू ने मंगलवार को अगवा किया था और बुधवार को उनकी गोलियों से छलनी लाश बरामद हुई। भट्ट अपने पीछे बीवी, एक 5 साल लड़का और कमसिन बच्ची छोड़ के चले गए। बारामूला हंदवारा कौमी शहरा पर आज सुबह ठोकरपुरा के मकाम पर एक मुश्तबा शय पाई गई। हिफाजती अमले ने सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोककर इस शय को नाकारा बना दिया। खैबर सीमेंट ने ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के इश्तराक से वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2024 के सिलसिले में बाइक रैली का एहतमाम किया है। इस रैली को 9 अक्टूबर को नेहरू पार्क श्रीनगर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया और 10 रोज जारी रहने के बाद ये बाइक रैली सियाचिन बेस कैंप पर इख्तिताम पजीर होगी। इस बाइक रैली में 16 बाइक सवार शिरकत कर रहे हैं। खैबर सीमेंट्स के डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटजी उमर त्रंबू भी इस मौके पर मौजूद रहे। बडगाम से आज तालिब इल्म का एक ग्रुप भारत दर्शन के लिए रवाना किया गया। इस ग्रुप को बडगाम के एसएसपी निखिल बोरकर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वीप एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस की तरफ से एहतमाम किए गए इस टूर में 66 तालिब इल्म शामिल हैं। ये तालिब इल्म मुल्क की कई तारीखी जगहों के अलावा दिल्ली और कोलकाता भी जाएंगे। आइनॉक्स श्रीनगर में आज कुल्फ नामी कश्मीरी फिल्म का 7 रोजा रन कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। अली इमरान की तरफ से डायरेक्ट की गई इस कश्मीरी जुबान की फीचर फिल्म ने गुज़िश्ता 60 साल में पहली कश्मीरी जुबान की फिल्म की तारीख रकम की है। ये फिल्म याकूत मुश्ताक की तरफ से प्रोड्यूस की गई। ग्वालियर मध्य प्रदेश में मुनक्किदा 30वें जूनियर नेशनल थोंग था चैंपियनशिप में 48 मेंबरों पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर थोंग था टीम ने भी हिस्सा लिया। यह टूर्नामेंट 5 से 7 अक्टूबर के दरमियान मुनक्किद हुआ। J&K थोंग था टीम आज वापस श्रीनगर पहुंचा। J&K टीम ने 9 सोने, 12 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल हासिल किए। इस टीम के साथ 3 कोच भी थे। अभी एमपी ग्वालियर से आ रहे हैं। वहाँ पर हमारा 30th जूनियर नेशनल थंगता चैंपियनशिप थी, जिसमें हमारा जो यूटी है J&K वो फर्स्ट रनर अप आए। हमारी यूटी ने 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीते हैं। मैंने पर्सनली सिल्वर मेडल जीता। मैं इससे पहले 8 ईयर से खेलती आ रही हूँ और मेरा रिसेंट इससे पहले मैंने सिल्वर मेडल जीता था, उससे पहले मैंने गोल्ड मेडल जीता था। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे, ताकि हम जैसे जो यूथ है घर पे उनको पोटेंशियल मिले और वो ऐसे ही हमारा जो यूटी है, हमारा जो इंडिया है, उनका नाम ऐसे शाइन करे। मेरा नाम तारिक हसन है। मैं एज अ टीम कोच इनके साथ गया था 13th नेशनल थंगता चैंपियनशिप में, जो कि एमपी ग्वालियर में इस साल मुनक्किद हुई थी। वहाँ पे हम टीम लेके गए थे J&K से, ऑल ओवर J&K के सभी डिस्ट्रिक्टों से हमने पार्टिसिपेशन चुन के लिए थे जिन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। और करीबन हमारे वहाँ पे 9 गोल्ड, 11 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल निकाले। ओवरऑल कंपटीशन में हमारी फर्स्ट रनर पोजीशन मिली है और नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं कि इतनी मेहनत से हम जाए कि हम वहाँ पे विनर आ जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए था कि गवर्नमेंट हमें थोड़ा सपोर्ट कर ले उसके लिए, ताकि हम कश्मीर को रिप्रेजेंट वहाँ पे जाके करें, हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे, और कश्मीर का नाम आगे बढ़ाए। वर्ल्ड साइट डे के मौके पर आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड ऑप्थोमोलॉजी की तरफ से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तेलबल हजरतबल में एक विजन स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में 161 अफराद की आंखों की जांच की गई। इस मौके पर माहिरीन ने आंखों की बीनाई के बचाव और मुतल्लिका दीगर मामलात के बारे में लोगों को जानकारी फराहम की।
वर्ल्ड साइट डे के मौके पर हेल्प फाउंडेशन J&K ने महकमे सेहत और एक मकामी आंखों के अस्पताल के इश्तराक से आज मुफ्त विजन स्क्रीनिंग कैंप का एहतमाम किया। रतपुरा ईदगाह श्रीनगर में मुनक्किदा कैंप के दौरान 150 बीमारों की आंखों की जांच की गई। CRPF की 35वीं बटालियन की तरफ से आज गवर्नमेंट शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बडगाम में मोबाइल फोन रिपेयर टेक्निक के कैंप का इनेकाद किया गया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा इस तरबियती कैंप का मकसद मकामी नौजवानों को मोबाइल फोन रिपेयर करने की तरबियत देना है ताकि जिले में बेरोजगारी के मसले का तदारुक किया जा सके। इस तरबियती कैंप में 50 नौजवानों को ये तरबियत फराहम की जाएगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अनंतनाग में एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को आइंदा के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की तलकीन की गई। DSP ट्रैफिक अनंतनाग ने कहा है कि मुस्तकबिल में भी ऐसी मुहिम चलाई जाएगी। कुलगाम बार एसोसिएशन के इंतखाबात में एडवोकेट मोहम्मद शफी भट्ट को एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया है। इस मौके पर एसोसिएशन के नायब सदर, 2 सेक्रेटरी और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी इंतखाब हुआ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांपोर में आज शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। इस मुहिम का एहतमाम फैमिली एडिशन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने किया था। इस मौके पर 200 पौधे लगाए गए। हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की जारी तकरीबात के सिलसिले में आज खानकाह मौला श्रीनगर में एक पुरविकार तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर नमाज ज़ोहर से कबल मीर वाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने शाह जीलान रहमतुल्लाह अलैह की इस्लामी खदमात और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। सर सईदाबाद बेमना श्रीनगर के एक समाजी कारकुन और जम्मू कश्मीर बैंक के साबिक मैनेजर सईद निसार हुसैन बुखारी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी इज्तिमाई फातह ख्वानी 12 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे मज़ार उंजुम कमरवारी में अंजाम दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लाओस के अपने 2 रोज़ा दौरे पर आज दोपहर वियंटियन पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से भारत के आसियान ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर भारतीय बिरादरी ने होटल में उनका पुरजोश खैर मकदम किया। नई दिल्ली में रवानगी से कबल अपने बयान में मोदी ने कहा कि वो आज 21वीं भारत आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चोटी कॉन्फ्रेंस से अलग वज़ीर-ए-आज़म लाओस की रामायण का नजारा कर रहे हैं। ये जनूब मशरकी एशिया की मकबूल कदीम रज़्मिया नज़्म रामायण का लाओस की जानिब से अपनाया गया रूप है। वज़ीर-ए-आज़म आसियान ममालिक के साथ 2 तरफा मीटिंगें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वियंटियन में 19वीं मशरकी एशियाई चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का भी प्रोग्राम है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए मोदी ने कहा कि वो जामिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लेने और मुस्तकबिल के ताउन का खाका तरतीब देने में आसियान रहनुमाओं की कोशिशों में शरीक होंगे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पे बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।
گمشدگی کے بارے میں ایک اطلاع۔ محمد سبحان تانترے ساکن گنٹ اطلاع دیتے ہیں